Hello friends, welcome to iExamB. I'm Satakshi, your English faculty at iExamB, and in this video we will see that what kind of questions came in 2021 in your SSC CGL examination in the English section particularly. So friends, as we all know that there are some definite topics that are asked every year in SSC CGL exam, and from the same topics there was nothing new that was asked. Questions from the same topic were asked in 2021 as well in the English section. So friends, I also made a video last time, in the previous video it has been mentioned that what kind of questions are important and what are the scoring topics if you are attempting SSC CGL this year. Watch that video if you want to know that what are the areas where you can score well if you are attempting SSC CGL exam this year. Alright friends, so let's have a look at the topics from which the questions were asked. So friends, firstly, we all know there are 25 questions that are asked in the English section of SSC CGL. So two questions we saw of jumbled sentences of a paragraph, that is 4 sentences were given and then you had to they were jumbled and then you had to find their correct order, and like this similar 2 paragraphs were given, 2 different paragraphs, and you had to find out their arrangements. There were 2 different questions based on this, right? And then there were 2 questions on synonyms, 2 questions on antonyms, and 2 questions on spellings, right? So your vocabulary and spelling comprised of majorly 6 questions, right? Then there were 2 questions of error detection. Now these type of questions are that a sentence is given and it is divided in parts, and you have to see that which part contains the error and mark that part as the answer. So like this we had 2 questions based on error detection. For this friends, rules of grammar is very important, especially in SSC CGL exam, right? So make sure that you go through the rules of grammar if you want to attempt these questions, right? Now moving on to the next topic, we had 2 questions from idioms. So friends, we know idioms की जो खास बात ये होती है, the special thing about idioms is that you either know the answer or you don't know the answer. Idioms में guess work नहीं करना चाहिए, especially if sentence is not given. अगर सिर्फ idiom given है तब आप गेस वर्क मत करिए, क्योंकि हो सकता है कि गलत हो जाए. सो इडियम्स की काफ़ी वाइड लिस्ट होती है. सो अगर तो आपने पढ़ा हुआ है, वैसे ज़्यादातर कॉमन इडियम्स ही आते हैं, राइट? सुने हुए, ऐसे ही कोई आउट ऑफ द ब्लू रैंडम इडियम नहीं आ जाएगा. जो बहुत कॉमन इडियम्स हैं उन्हीं में से पूछा जाता है, बट देन आपकी नॉलेज जो है इडियम्स की वो सफिशिएंट होनी चाहिए. सो इसके लिए आप सबसे बेस्ट ट्रिक ये है कि एक तो आप इडियम्स की अच्छे खासे, मतलब आपको अराउंड 100 इडियम्स के आसपास आपको आनी चाहिए, 100 से ऊपर ही आनी चाहिए. प्लस एक बात और ज़रूरी है कि गेस वर्क नहीं करना है, जैसे मैं पहले बोल चुकी हूँ, राइट? नेक्स्ट इज यू हैड 5 क्वेश्चंस फ्रॉम क्लोज पैसेज. तो केवल क्लोज पैसेज एक ऐसा टॉपिक था जिसमें 2 से ज़्यादा क्वेश्चंस आए, ऑलराइट? एंड क्लोज पैसेज हर बार आता है, केवल एसएससी सीजीएल में नहीं, हर एग्जाम में, चाहे बैंकिंग एग्जाम हो, एसएससी का कोई और भी एग्जाम हो, कोई भी रेगुलेटरी बॉडी का एग्जाम हो, क्लोज पैसेज एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है और स्कोरिंग भी है. स्कोरिंग कैसे है? इसमें फिलर्स होते हैं, एक पूरा पैराग्राफ गिवन होता है और फिलर्स होते हैं, बीच बीच में ब्लैंक्स होते हैं. तो एक पहले ब्लैंक में क्या आना है वो आगे के पैराग्राफ पढ़कर भी कभी आइडिया लग जाता है, राइट? तो इसलिए क्लोज पैसेज जो होता है थोड़ा इजी होता है एज कम्पेयर टू फिल इन द ब्लैंक्स, राइट? सो इसके आपके 5 क्वेश्चंस आए थे. इसके लिए आपको रूल्स ऑफ ग्रामर एंड बेसिक ग्रामर जो है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, इन सब की नॉलेज होनी चाहिए. और इसके अलावा आपको कभी कभी वोकैबुलरी बेस्ड भी आ जाता है या फ्रेजल वर्ब बेस्ड भी आ जाता है, तो उसकी भी नॉलेज होना बहुत काम आता है, राइट?
नेक्स्ट एक्टिव पैसिव वॉइस से एक क्वेश्चन आया था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से एक क्वेश्चन आया था, राइट। तो यहाँ से एक एक क्वेश्चन आए थे। तो हम ये देख सकते हैं कि अगर क्योंकि इन टॉपिक में से केवल एक एक क्वेश्चन आया है और अगर आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आते हैं तो या तो आप इनको ना पढ़ें, और अगर पढ़ लिया है, आपने उसमें अपना टाइम लगा दिया है, तो वहाँ पर केवल ऑप्शन तभी सेलेक्ट करें व्हेन यू आर 100% श्योर अबाउट इट, क्योंकि इसमें भी गलती करने के चांस रहते हैं, ऑप्शंस थोड़े कंफ्यूजिंग रहते हैं, राइट। तो क्योंकि कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स फॉलो नहीं होंगे तो आंसर एकदम गलत हो जाएगा, और आंसर बहुत सिमिलर लुकिंग होते हैं, ठीक है, माइन्यूट डिफरेंस होता है। तो इसको तभी अटेम्प्ट करना व्हेन यू आर 100% श्योर, ओके। आगे आपके फिल इन द ब्लैंक्स के 2 क्वेश्चंस आए थे, और 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन के भी आपके 2 क्वेश्चन आए थे, और 2 आए थे आपके सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के। अब फिल इन द ब्लैंक्स कैसे होता है, नॉर्मल जैसे आपको एक सेंटेंस दे दिया, उसमें एक ब्लैंक है, आपको गिवन 4 ऑप्शंस में से ब्लैंक फिल करना है। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, इससे आपको पूरा एक लंबा सा फ्रेज गिवन होगा और फिर आपको ऑप्शंस में एक एक वर्ड दे रखा होगा। जैसे कि सपोज आपको क्वेश्चन में दे दिया समवन हु हेट्स विमेन, राइट। तो इस फ्रेज को 1 वर्ड में क्या बोलेंगे ये आपको ऑप्शंस में दे रखा होगा, ठीक है। सो इसका आंसर होता है मिसोजिनिस्ट, राइट। सो आप मिसोजिनिस्ट को एज योर आंसर चूज करेंगे, ये 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ऐसे सेंटेंस इंप्रूवमेंट क्या होगा, एक लंबा सा एक सेंटेंस गिवन है, उसमें एक पार्ट अंडरलाइंड होगा और वो जो पार्ट है वो ग्रामेटिकली गलत हो सकता है, ठीक है, और ऑप्शंस में उसका ऑल्टरनेटिव आपको दिया गया होगा कि अगर ये हाईलाइटेड पार्ट या अंडरलाइन पार्ट गलत है तो ऑप्शंस में से सही पार्ट चूज करो, तो आपको वो सही पार्ट चूज करना होता है। ऐसे 2 क्वेश्चंस आए थे। सो फ्रेंड्स ये 2021 में आए थे, ये 25 क्वेश्चंस का ब्रेकअप है। अब मैं आपको बता दूं वी विल डिस्कस द इंटायर पेपर। मैं आपका एटलीस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आई विल मेक श्योर कि हम डिस्कस करें इन द नेक्स्ट वीडियो, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा जिससे कि आपको भी आइडिया लग जाए कि एग्जैक्टली क्वेश्चंस की डायरेक्शन क्या होती है, ऑप्शंस कैसे आते हैं, राइट। एंड देन फिर जब आप अभी एग्जाम की तैयारी भी करेंगे उसमें आपको हेल्प करेगा, राइट। So friends, all the mock test at iexampi.com are absolutely free. So SSC CGL का भी mock test आप attempt करें, वहाँ जाएं, absolutely free mock test है। और अगर आप चाहें तो एक बारी अगर आपने इंग्लिश का दे दिया, सपोज आप इंग्लिश का दे दें और अगर आपको वहाँ पे आप सबमिट कर दो, अपना रिजल्ट देख लो, आप दोबारा देना चाहें आप दोबारा से दे सकते हैं। जैसे एग्जाम पास आ जाए और आप चाहें कि आप दोबारा दे दें तो आप फिर से दे सकते हैं वो मॉक, और आपका अगर आप बेटर स्कोर करेंगे तो आप खुद को इवेल्युएट कर पाएंगे, राइट। सो दिस इज अ वेरी गुड फीचर दैट वी आर ऑफरिंग ऑफ रीअटेम्प्टिंग द मॉक टेस्ट। और अगर आपका कोई भी डाउट है रिगार्डिंग द कोर्सेज दैट वी आर ऑफरिंग या SSC CGL के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमें hello@iexampi.com पे लिख सकते हैं या स्क्रीन पे दिए गए इस नंबर पे कॉल करके अपना कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। ऑल्सो फ्रेंड्स हम लोग SSC CGL का कोर्स भी ऑफर करते हैं, सो आप उस कोर्स का डेमो www.iexampi.com पे जाके चेक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स इफ़ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब टू आवर चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ऑल्सो बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशंस टाइम पर मिलते रहें।